Hello students, this is your history part of your social science book and the chapter number 4, Forest Society and Colonialism. This is the page number 77. Take a quick look around your school and home and identify all the things that come from forest. The paper in the book you are reading, desk and tables, doors and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, the cell phone wrapper of your toffee, tendu leaf in bidis, gum, honey, coffee, tea and rubber. Do not miss out the oil in chocolates, which comes from sal seeds, the tannin used to convert skins and hides into leather, or the herbs and roots used for medicinal purposes. Forests also provide bamboo, wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds and many other things. In the Amazon forest or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest path. A lot of this diversity is fast disappearing. Between 700 and 1995, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest or 9.3% of the world's total area was cleared for industrial uses, cultivation, pastures and fuel wood. तो चिल्ड्रन, जैसे कि आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आप पाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो वुड से ही बनी हुई मिलेंगी, चाहे वो आपकी जो पेड़ से ही बनी हुई मिलती है, ट्रीज से बनी हुई मिलती है। जैसे कि जो आप बुक को रीड कर रहे हैं वो बुक भी ट्रीज से बनी हुई है। उसके बाद आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो डेस्क, टेबल, डोर, विंडो, आपके क्लॉथ्स, स्पाइसेस, आपने देखा होगा कई लोग बीड़ी पीते हैं, वो गम, हनी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉरेस्ट से हमको प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि बम्बू है, वुड है, ग्रास, फ्यूल, चारकोल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पाते हैं? फॉरेस्ट से। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1700 से लेकर के 1995 के पीरियड के बीच में फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन और कल्टीवेशन और पास्चर और लकड़ियों को जला लिया जाता है, तो इस वजह से जो फॉरेस्ट है हमारे वो 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या फिर कहा जाए तो वर्ल्ड का 9.3% जो टोटल एरिया है वो क्लियर हो चुका है। मतलब हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो तेजी से डिसअपियर हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा फॉरेस्ट है वो डिसअपियर हो रहा है और हम उनको किस तरह से बचाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वाई डिफॉरेस्टेशन, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एंड डिफॉरेस्टेशन. Deforestation is not a recent problem. The process began many centuries ago, but under colonial rule it became more systematic and extensive. Let us look at some of the causes of deforestation in India. तो बच्चों, ये जो डिफॉरेस्टेशन है क्यों होता है? ये डिफॉरेस्टेशन कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सदियों पहले ये स्टार्ट हो चुका है। लेकिन पहले जो था थोड़ा सिस्टमेटिक वे में यह होता था, लेकिन आज जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत तेजी से हो रहा है। चलिए हमारे भारत में डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण हैं, हम पहले उन पर नज़र डालते हैं। चिल्ड्रन, यू विल रीड द चैप्टर डीपली, आई विल गिव यू ओनली समरी. As population increased over the centuries and the demand for food went up, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forest and breaking new land. In the colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety of reasons. First, the British directly encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton. The demand for these crops increased in 19th century. Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw material were required for industrial production. Now second, in the early 19th century, the colonial state thought that forests were unproductive. They were considered to be the wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state.
So between 1880 and 1920, cultivated area rose by 6.7 million hectares. तो सबसे पहला कारण ये है कि जो लैंड है उसको इम्प्रूव किया गया एग्रीकल्चर के पर्पस से। उसका जो पहला डिमांड तो ये हुई कि जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वैसे ही लोगों को फूड के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए जो पीजेंट्स थे, हमारे किसान थे, उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन शुरू कर दिया बाउंड्रीज का, और इसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया और नई नई ज़मीनें बनाना स्टार्ट कर दिया। अब कारण ये था, पहला कारण तो ये था कि ब्रिटिश जो थे वो डायरेक्टली एनकरेज कर रहे थे लोगों को कि वो जो कैश क्रॉप्स होती हैं, जूट है, शुगर है, वीट, कॉटन, इनके लिए वो एनकरेज कर रहे थे कि ये वो प्रोडक्शन उनका करें। और जो यूरोप कंट्रीज थी उनमें इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो लोगों के मन में ये आ गया कि हम अब इससे अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अब 19वीं सेंचुरी में कुछ लोगों को लगने लगा कि जो फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है, इसलिए उन्होंने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो जमीन थी वो जो फॉरेस्ट थे उनको बर्बाद कर और लैंड जो एग्रीकल्चर की लैंड थी वो उन्होंने बना ली। इसलिए 1880 से लेकर 1920 के बीच में जो कल्टीवेटेड एरिया था वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया, और जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट उतनी ही मात्रा में कम हो गए। ये तो मेन रीजंस हुए। इसके साथ साथ द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850s created a new demand. Railway were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. The run locomotives, wood was needed as fuel, and to lay railway lines, sleepers were essential to hold the tracks together. Each mile of railway track required between 1,760 and 2,000 sleepers. As the railway tracks spread through India, a larger and larger number of trees were felled. Forests around the railway tracks fast started disappearing. अब जो थर्ड रीज़न था डिफॉरेस्टेशन का वह यह है कि 1850s में रेलवे की जो डिमांड थी वो बढ़ गई। अब रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए स्वाभाविक सी बात थी कि रास्ते की ज़रूरत थी, तो पहाड़ों और जंगलों को काट कर ही ट्रैक्स लगाए गए, और ये जो ट्रैक्स थे ये हर मील में रेलवे ट्रैक जो था वो 1,760 से 2,000 स्लीपर्स की ज़रूरत उसमें थी। और देखते ही देखते जो रेलवे ट्रैक्स थे उनके आजू बाजू और उनके दूर दूर तक के एरियाज में जो हमारे फॉरेस्ट थे वो डिसअपियर होते गए। Plantation. Large area of natural forest were also cleared to make way for tea, coffee and rubber plantations to meet Europe's growing need for these commodities. The colonial government took over the forest and gave vast area to European planters at cheap rates. These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea or coffee. अब टी, कॉफ़ी और रबर की जो डिमांड थी वो यूरोप कंट्रीज़ में बढ़ती जा रही थी, और हमारे यहाँ से वो यही चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। तो इसके लिए लोगों को जब बदले में उनको पैसा मिलने लगा, मनी मिलने लगा, तो लोगों ने फॉरेस्ट को काट कर और यहाँ पर टी और कॉफ़ी के प्लांट लगाने शुरू कर दिए। और ब्रिटिशर्स ने तो ज़बरदस्ती इनको लगवाया, और यहाँ से वो चीप रेट में जो टी, कॉफ़ी, रबर होता उसे यहाँ से सस्ते रेट में ख़रीदते और फिर यूरोप कंट्रीज़ में ले जाकर उन्हें अच्छे दामों में बेचते। तो यह भी एक कारण था जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हमारी कंट्री में हुआ। In the next video, we will read the rise of commercial forestry. Children, you have to read the chapter deeply. I will give you only summary.